الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد إنما يريد الله أن يذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله العلي وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلام عالی، سب سے پہلے ہم اور آپ مل کر اپنے سارے کائنات کے آقا جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بارگاہ بے کسبنا میں انتہائی عقیدت اور محبت کے ساتھ درود شریف کا نذرانہ پیش کرتے ہیں. جس آواز اور جس انداز سے میں آپ کو پڑھاؤں اس سے بہتر اور بلند آواز سے پڑھنے کی کوشش کریں. پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج دو چیزیں مجھے آپ کے سامنے پیش کرنی ہیں. ایک تو شہادت مولا علی پیش کرنا ہے، دوسرا شان اہل بیت پیش کرنا ہے. تو کوشش کروں گا کہ وقت کے اندر یہ دونوں چیزیں ہو سکیں کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ شان اہل بیت بیان کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. جس کی شان اللہ نے قرآن میں بیان کر دی ہو، پھر پوری دنیا میں کر کے اس کی شان بیان کریں، یہ ہو نہیں سکتا. اس کے شان بیان کرنے کا حق ادا ہو نہیں سکتا. تو کوشش کروں گا کہ اس ناچیز سے جس قدر ہو سکے، جتنا اپنے محبت کا خراج عقیدت میں پیش کر سکوں اتنا کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کروں گا. اور آج میں خصوصاً آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آج پورا ذہن میرے طرف، آپ توجہ میری طرف کریں اور اپنے ذہن کو میرے طرف رکھنے کی کوشش کریں. دیکھیے میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں ایک چیز میں نے آج جب کتاب کا میں مطالعہ کر رہا تھا، ایک چیز پہ میں نے غور کیا. اس سے پہلے بھی میں نے حضرت علی کے بارے میں پڑھا، اس سے پہلے بھی میں نے اہل بیت اطہار کے بارے میں پڑھا تھا، اس سے پہلے بھی میں نے صحابہ کے بارے میں پڑھا تھا. آج ایک بات میرے ذہن میں آئی کہ علی کا گھرانہ ایسا ہے کہ وہ گھرانہ ہمیشہ سے قربانی پیش کرتا ہوا آیا ہے. وہ گھرانہ علی کے گھرانے کو، حضرت علی کی بات آپ لے لیں تو حضرت علی کو بھی شہید کیا گیا. آپ حضرت علی کے دونوں صاحبزادوں کی بات کریں تو حضرت امام حسن کو بھی شہید کیا گیا. پھر وہاں سے آپ حضرت امام حسین کے پاس آئے تو وہاں پر پورا کا پورا گھرانہ کربلا میں شہید کیا گیا. تو گویا کہ یہ پورا گھرانہ ایسا گھرانہ ہے جو شہیدوں کا گھرانہ بنتا ہوا نظر آتا ہے. یہ پورا گھرانہ ایسا ہے کہ حضرت علی سے حضرت علی نے یہ اپنے پورے گھرانے کو یہ سبق سکھا دیا ہے کہ اگر مرنا تو راہ خدا میں شہید کا مقام حاصل کر کے مرنا، ایسی موت بستر پر نہیں مرنا. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں آپ سے پوچھوں، اب میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی اور اہل بیت اطہار نے ہمیں یہ سبق دیا ہے، یہ سبق پڑھایا ہے، یہ ہمیں نصیحت کی ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کسی بھی حالت میں اگر تمہیں مرنے کی باری آئے یا راہ خدا میں سر کٹانے کی باری آئے، جان کی قربانی پیش کرنے کی باری آئے، تو کبھی ذرہ برابر اپنے قدم کو پیچھے ہٹنے مت دینا. دیکھو میں علی ہوں، میں بھی شہید ہو رہا ہوں، میرا بیٹا حسن ہے وہ بھی شہید ہو رہا ہے، میرا بیٹا حسین ہے وہ بھی شہید ہو رہا ہے، یہاں تک کہ اس کے جو میرے پوترے ہیں وہ بھی شہید ہو رہے ہیں. اور کوئی اپنے قدم کو شہادت کے لیے پیچھے قدم نہیں ہٹاتا ہے، ہمیشہ شہادت کو گلے لگانے کے لیے تیار رہتا ہے. تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب آئیے حضرت علی کی شہادت جو ہے سب سے پہلے ہم سماعت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، پھر اس کے بعد جو ہے ہم اہل بیت اطہار کی شان سنیں گے. اور آخر میں جن کی شادی ہو چکی ہے، جن کی اولاد ہے،
उनसे गुजारिश करूंगा आखिर में मेरा बयान बहुत गौर से समाप्त करें, और जो मेरी बहनें सुन रही हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा कि वो भी जरा पूरा तवज्जो के साथ मेरे आखिर के बयान को सुने, क्योंकि मैं ऐसा सबक आज सिखाने के लिए आया हूं कि हम अपने बच्चों की परवरिश के कितने हम पीछे हट चुके हैं, कितनी लापरवाही बरत रहे हैं, ये आपको याद दिलाने के लिए आया हूं। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे जुमानो हजरत अली हैं। हजरत अली जब खलीफा बने, हजरत उस्मान की शहादत आपने कल सुनी, तो हजरत उस्मान की शहादत के बाद जो हजरत परसों आपने सुनी थी, तो हजरत उस्मान के शहादत के बाद जो खलीफा बने वो हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु थे। लेकिन इसी वो दौरान में बोलते शाम में जो गवर्नर बनकर के मुकर्रर हुए थे, हजरत अमीर मुआविया ने भी खिलाफत का ऐलान कर दिया, और इधर हजरत अली ने भी खिलाफत का ऐलान कर दिया। अब ये हो सकता है कि दोनों में से एक ही खलीफा बने, एक वक्त में दो खलीफा हो, इस्लाम में ऐसा नहीं हो सकता, नामुमकिन था। और खुलफाए राशिदीन में हजरत अली का शुमार होता है, तो चौथे नंबर पर जो खलीफा बने हजरत अली करमल्लाहु वजहुल करीम थे। और बहुत सारे ऐसे सहाबा जिन्हें हजरत जुबैर और हजरत तलहा कहा जाता है, उनका सपोर्ट भी हजरत अली को मिला। तो हजरत अली जो है बहुत जगह पर गए तो बहुत सारे लोगों ने हजरत अली को खलीफा तस्लीम कर लिया और हजरत अली के हाथ पर बैत कर ली, मान लिया कि यह मुसलमानों के खलीफा इस वक्त जो है वो हजरत अली है। अब इसी दौरान मुल्क शाम में हजरत अमीर मुआविया को पता नहीं था कि हजरत अली जो है खिलाफत का ऐलान कर चुके हैं, वो भी खिलाफत का ऐलान कर दिए। अब दोनों खलीफा बन गए, अब पीछे हटने का दोनों को सवाल नहीं होता था। तो जो कि वो वाकयात बहुत बड़े हैं और उसे समझाने के लिए ठंडे दिमाग से बहुत टाइम लेकर के समझाना पड़ेगा, तो उन चीजों को मैं अभी बाकी रखता हूं, कभी जिंदगी में दोबारा मिला तो आपको बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आज मैं हजरत अली की शहादत बताने की कोशिश करूंगा। हजरत अली जैसे खलीफा बने, हजरत अली ऐसे वाहिद खलीफा थे कि जैसे खलीफा बने हजरत अली को जंग से कभी फुर्सत नहीं मिली। ऐसे खलीफा थे कि जिनको दुश्मन के साथ साथ अपनों से मुकाबला भी उतना ज्यादा सख्त पेश आया। जाहिर सी बात है, अगर आप दुश्मन के मुकाबले में आप जंग करने के लिए निकले हैं तो आप ये सोच करके निकलेंगे या तो मैं मरूंगा या मानूंगा, दूसरा कोई कदम न, दूसरा आप कुछ नहीं सोचने को तैयार होंगे, या तो मरेंगे या तो मारेंगे, क्योंकि काफिर है सामने, इनके साथ जो है हाथ मिलाना ये तो नहीं हो सकता। या तो हम इस्लाम को गलबा देंगे, इस्लाम को जीत दिलाएंगे, या फिर सामने वाले को किसी तरीके से हम सामने वाले के हाथों शहीद हो जाएंगे, लेकिन कभी पीछे कदम नहीं हटाएंगे और इनके साथ मुकाबला करते रहेंगे। इनके या तो हम इनको मारेंगे या हमें इन्हें मारेंगे, बस बात खत्म, इसके अलावा तीसरा रास्ता नहीं था। तो ऐसे होता। लेकिन यहाँ पर हजरत अली की जब दौरे खिलाफत आई तो दुश्मन भी थे, दुश्मनों से भी जंग होती रही, दुश्मन से भी लड़ते रहे हजरत अली, और दुश्मनों के साथ हजरत अली की जंग अपनों से भी बहुत ज्यादा सख्त पेश आई। हजरत अली खलीफा बने, जंगे जमल हुई, जंगे जमल से फारिग हुए, जंगे सिफीन हुई, जंगे सिफीन से फारिग हुए तो जंगे महरवा ऐसा कुछ नाम था, वो जंग पेश आए। एक जगह का नाम था जहां पर जो है हजरत अली ने खारजियों से जंग की थी। अब ये खारजी है कौन? ये खारजी जो है उस वक्त में पहले ये लोग शिया ग्रुप में शामिल थे, जो हजरत अली की मोहब्बत में एक ग्रुप बना था उसमें शामिल थे। पहले ये लोग कुछ अच्छे थे, हजरत अली से मोहब्बत करते थे, लेकिन बाद में जब हजरत अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान थोड़े ना इत्तफाकियां पैदा हुई, गलत फहमियां पैदा हुई, तो इस गलत फहमियों का इन लोगों ने गलत फायदा उठा करके एक नया ग्रुप पैदा हुआ जिसे खारजी कहा जाता है। गौर से सुने, फिर ऐसा ना हो कि मैं कुछ और कहना चाहूं, आप कुछ और समझ ले, फिर आपका भी जो यहाँ अकीदा है वो भी खराब हो जाए, फिर आप अहले सुन्नत के अकीदे के खिलाफ अपना अकीदा बना ले, ऐसा ना होने दे। पूरे गौर से सुने, ठीक है। तो इन लोगों से एक नया ग्रुप निकला जो हजरत अली की नफरत में निकला था। हजरत अली की नफरत से, ये नफरत में ये ग्रुप पैदा हुआ जिसे खारजी कहा जाता है। ये ग्रुप निकला। अब जब ये ग्रुप निकला, अंदाजा लगाएं कि ये लोग कितने बदतरीन और कितने कमीने लोग थे, कैसी जात इन लोगों की थी। इन लोगों ने जब अपना नया ग्रुप बनाया तो नया ग्रुप बनाने के बाद जब इनसे पूछा गया कि तुमने अपना नया ग्रुप क्यों बनाया है, तो इन लोगों ने कहा कि माज़ अल्लाह हजरत अली काफिर हो गए हैं, इस वजह से हमने नया ग्रुप बनाया। हजरत अली को खारजी ग्रुप आप भी सुनते होंगे कभी नाम, किसी ग्रुप का खारजी है, किसी का राफजी है, किसी का शिया है।
तो इनके अकीदे में आपको सुना रहा हूं। ये लोग जब निकले तो इनका पहला फतवा था, इनसे पूछा गया कि आपने अपना एक नया ग्रुप क्यों बना लिया है? तो इन लोगों के अल्फाज थे कि हजरत अली जो है काफिर हो गए हैं, ये कुफ्र में मुब्तला हो गए माज़अल्लाह। तो इस वजह से हम हजरत अली के दुश्मनी में, हजरत अली के नफरत में हमने नया ग्रुप बना लिया है। अब ऐसे चलता हजरत अली से को जब ये बात पहुंची कि एक नया ग्रुप पैदा हुआ है जिसका नाम खारजी है, वो लोग कह रहे हैं कि आपने कुफ्र किया है, आप काफिर हो चुके हैं, तो इस वजह से वो लोग आपसे नफरत करते हैं। हजरत अली ने इब्ने अब्बास को जो है अपने तरफ से उन लोगों के साथ जो है मुनाजरा करने के लिए भेजा कि जाओ उन लोगों से मुनाजरा करो और पता लगाओ कि वो किस सबूत पर भी, किस बुनियाद पर मुझे काफिर कह रहे हैं और किस बुनियाद पर जो है मुझ पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं। बात ऐसी होती है, हजरत इब्ने अब्बास गए, जाने के बाद उन लोगों से बहस की, पूछा कि तुमने क्यों हजरत अली पर कुफ्र का फतवा लगाया? माशाअल्लाह, जिनके ईमान के बारे में हजरत हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था और जिनके ईमान की ताकत ऐसी थी कि खैबर का दरवाजा उखाड़ करके फेंक दिया, जिनके ईमान की और जिनके इल्म की ताकत ऐसी थी कि जिनके इल्म को आजमाने के लिए जिब्रील आते थे, कि जिनके घर में जिब्रील दाखिल नहीं होते थे। आला हज़रत फरमाते हैं बे इजाजत जिनके घर जिब्रील दाखिल होते नहीं, कदर वाले जानते हैं कदर शान अहले बैत, ऐसा मकाम रखने वाले अली के बारे में इन खारजियों का इस कदर गंदा गीदा बना था कि ये लोग सीधा सीधा हजरत अली पर कुफ्र का फतवाने लगाने लगे, हजरत अली को काफिर कहने लगे। हजरत अली को बड़ा बुरा लगा, भेजा और पूछा कि क्यों तुम अली पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हो? इब्ने अब्बास ने पूछा तो उन लोगों ने कहा कि अली जो है फलां को, फलां के बारे में कहते हैं कि फलां का जो हुक्म है, फलां जो करेगा वही मेरा हुक्म है, जो फैसला करेगा वही फैसला अली का होगा। तो अली ये काम जो है शिर्क कर रहे हैं, ये काम कुफ्र पढ़ना है। तो इस वजह से ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह की ये आयत है कुरान मजीद में, अल्लाह ने फरमाया था ला हुक्म इल्लल्लाह, अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है। तो इस आयत का गलत मतलब निकाल करके जिस तरीके से आज वहाबी देवबंदी गंदा एक अपने आयतों, अल्लाह की आयतों में अलग अलग अपने हिसाब से मतलब निकाल करके लोगों पर फतवा लगाते हैं, लोगों पर शिर्क और कुफ्र का फतवा लगाते हैं और वसीले को नाजायज करा देते। इसी तरीके से उस खारजी फिरके ने भी कहा कि अल्लाह के इस आयत मुबारका को लिया कि ला हुक्म इल्लल्लाह, कि अल्लाह के सिवा किसी का हुक्म नहीं है, इस चीज को लेकर के उन्होंने हजरत अली पर फिट करके इसको गलत तरीके से हजरत अली पर फिट करके लोगों में ये फैला दिया कि अली काफिर हो चुके हैं, अली कुरान के खिलाफ काम करते हैं, अली कुरान के खिलाफ अमानी कर कुरान के खिलाफ काम करने लग गए हैं, अली कुरान के खिलाफ अकीदा करने लग गए हैं। तो गोया कि उन्होंने हजरत अली को खुल्लम खुल्ला काफिर कहा। जब उन्होंने हजरत इब्ने अब्बास ने उनके साथ बहस की, किसी वजह से भी, किसी हालत में, किसी सूरत में वो लोग मानने को तैयार नहीं थे, अपनी गलती मानने को तैयार नहीं थे। हजरत इब्ने अब्बास वहां से वापस आए, आकर के हजरत अली के बारगाह में अर्ज किया, ए अली, वो फलां से वो गिरोह है जो है वो आपको आप पर से कुफ्र के फतवे को हटाने को तैयार नहीं है, वो गलत आयत ले करके और वो आयत का मतलब गलत निकाल करके आप पर कुफ्र का फतवा लगाने हैं, आपके काफिर कह रहे हैं। तो जब ये बात सुनी तो हजरत अली ने कहा कि अगर वो कुरान के मतलब को गलत निकाल करके, कुरान का गलत मतलब निकाल करके मुझ पर कुफ्र का फतवा लगा रहे हैं, तो हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने इब्ने अब्बास को वजीर बना करके उनके साथ जंग न करने भेज दिया, सिपा सालार बना करके साथियों के खिलाफ जंग करने के लिए भेजा। तो दोनों मुस्लिम के हजरत इब्ने अब्बास भी जंग करने के लिए सिपाही लेकर के निकल पड़े। अब ये निकले, उधर से सामने वो लोग मौजूद थे, दोनों में जंग हुई, हजरत अली भी जंग में तकरीबन शामिल हुए। तो जंग में हजरत मुसलमानों को फतह हुई, जब मुसलमान जीते तो उसमें से जो कुछ खारजी थे वो मुसलमानों के अंदर शामिल हो गए, दोबारा फिर मुसलमान हुए, और कुछ खारजी थे जो वहां से भाग करके पहाड़ के रास्ते की तरफ निकल गए। अब हजरत अली को जीत नसीब हुई, हजरत अली कूफा की तरफ वापस आए, कूफा में रहने लगे।
और ये लोग जब मार खा करके वहां से गए, जाने के बाद ये लोगों की हालत ऐसी हो चुकी थी कि जो भी मुसलमान उस पहाड़ के रास्ते से गुजरता था, ये उसे मार करके उसके पास से सारा सामान छीन लेते थे, उसके पास से दौलत छीन लेते थे। तो कोई तिजारत का काबिला जाता, अगर उसमें कोई मुसलमान होता तो उस मुसलमान का सर वहीं पर कलम करते थे। इतनी मुसलमानों की नफरत इनके दिल के अंदर पैदा हो गई, इतनी हजरत अली की नफरत इनके अंदर पैदा हो गई और इतना ज्यादा ये मुसलमानों पर जुल्म करने लग गए। तो हजरत अली वहां भी अपने सिपाहियों को भेजते हैं और वहां पर भी इन लोगों पर हमला किया। तो कुछ लोग भाग करके दूसरे जगह चले गए और हजरत अली कुफा पर वापस आए। अब मामला ऐसा चलता रहा। अब 3 लोग जमा हुए, जिसमें से अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम, तकरीबन इसका नाम है, अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ही नाम है वो, और 2 लोग और खारजी, तीनों खारजी जमा हुए। जमा होने के बाद इन्होंने प्लानिंग की कि अब मुसलमानों के साथ रोज रोज का छोटे मोटे झगड़े करके हम परेशान हो चुके हैं। अब एक काम करते हैं, कोई ऐसा प्लान करते हैं जिसके जरिए हम पूरे मुसलमानों के साथ जो है हमारी जंग खत्म हो जाए और हमारा खौफ इनके अंदर बैठ जाए। मुसलमानों के अंदर से जो है, जो इनकी हिम्मत है वो इनकी हिम्मत टूट जाए, अली के साथ बार बार मुकाबला करने की जरूरत ना पड़े। इस प्लानिंग को करने के बाद तीनों ने ये डिस्कस किया कि एक तारीख मुकर्रर करते हैं। उस तारीख में मुसलमानों के उस वक्त 3 बड़े सहाबा जो जाने माने जाते थे, एक थे हजरत अली, दूसरे थे अमर बिन आस और तीसरे थे अमीर मुआविया। देखिए, अली की मोहब्बत में अमीर मुआविया को बुरा भला कहना ये हम अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अमीर मुआविया के साथ थोड़ी बहुत हजरत अली के गलतफहमी हो गई थी, उनके साथ थोड़ी बहुत बहस हो गई थी, थोड़ी बहुत जंग हो गई थी, लेकिन अमीर मुआविया को गलत कहना अहले सुन्नत का अकीदा नहीं है। अमीर मुआविया भी सहाबी हैं, वो भी हज़रत हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उन्होंने भी कई हदीसें नकल की हैं और उनके हदीसें भी मानी जानी जाती हैं। ठीक है, तो अमीर मुआविया भी हक पर हैं, हजरत अली भी हक पर है। ये दोनों जब आपस में थोड़ी बहुत नाइंसाफी इनके दरमियान थी, इसका गलत फायदा इन खारजियों ने उठाया। अब जैसे 2 भाई होते हैं, दोनों भाई में थोड़ी बहुत बहस हो जाती है, तो अब क्या होता है कि तीसरा कोई इंसान होता है जो इन दोनों भाइयों के दुश्मनी या आपस में थोड़ी बहुत झगड़े को गलत फायदा उठाता है। तो इसी तरीके से अमीर मुआविया और हजरत अली के दरमियान थोड़ी ना इत्तेफाकी थी, उसी चीज का गलत फायदा इन लोगों ने उठाया, खारजियों ने। अब इन लोगों ने सोचा कि अली को, अमर बिन आस और अमीर मुआविया को हम कत्ल कर देते हैं, जान से मार देते हैं, खुद मुसलमानों के अंदर हमारा डर पैदा हो जाएगा और हम आराम से जो है अपनी जिंदगी बसर कर पाएंगे, शान से अपनी जिंदगी जी पाएंगे। अब इन लोगों ने प्लान की कि तीनों एक ही तारीख के दिन तीनों जगह पहुंचते हैं। तकरीबन अमर बिन आस जो है मदीने में थे और अमीर मुआविया शाम में थे और हजरत अली कूफा जानते हैं आप लोगों ने, कूफा बार बार नाम सुना। ये कूफा वही कूफा है जिन्होंने हजरत इमाम हुसैन को 150 खत लिख करके बुलाया था, फिर बाद में पलट गए थे। यार मालूम है ना, सुने होंगे आपने, ये कूफा वही पर हजरत अली रहा करते थे। तो इन लोगों ने डिस्कस किया कि 17 शाबान को जो है हम लोग तीनों निकलेंगे और तीनों 17 रमजान को पहुंचेंगे, पहुंच करके हजरत अली और अमीर मुआविया और अमर बिन आस को जो है कत्ल कर देंगे और एक ही साथ इनको मार देंगे। फिर सारा जो है हम लोगों से परेशानी हमारी खत्म हो जाएगी और मुसलमानों में हमारा डर पैदा हो जाएगा। इसी तरीके से इन्होंने प्लानिंग की और प्लानिंग के हिसाब से तीनों निकल पड़े। तो एक शख्स उसमें से निकला अमीर मुआविया की तरफ, एक निकला अमर बिन आस की तरफ। ये अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजिम जो था वो हजरत अली को कत्ल करने के इरादे से आया। अब जब कत्ल करने के इरादे से आया, आने के बाद हजरत अली जिस सुबह में ये हजरत अली को कत्ल करने वाला था, उसी रात हजरत अली को जो है ख्वाब में हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत हुई। अब ख्वाब में हुजूर पाक की जियारत हुई, हजरत अली ने अर्ज किया, गौर से सुने, जब मैंने पहली बार ये वाकया पढ़ा रोंगटे खड़े हो गए कि हजरत अली शेर खुदा फातेह खैबर जिन्हें हैदर कर्रार कहा जाता है,
جن کے اسلام لانے کے بعد اور جن کے جنگ میں شریک ہونے کے بعد کسی کافر کے جنگ میں قدم رکھنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی. اور حضرت علی وہ حضرت علی کہ جن کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت علی ایک مطلب ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے، مکہ سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی پہنچے تو ہجرت کر کے آ رہے تھے، اور جو مدینے میں رہتے تھے آقا نے ایک مدینے میں رہنے والے اور ایک ہجرت کرنے والے دونوں کو بھائی بنایا. اسی طریقے سے تمام لوگوں کو بھائیوں میں تقسیم کر دیا کہ فلاں مدینے رہنے والا اور فلاں ہجرت کر کے آنے والا دونوں بھائی ہیں، پھر فلاں مدینے میں رہنے والا پھر فلاں ہجرت کر کے آنے والا دونوں بھائی ہے. اسی طریقے سے آقا نے بھائی بنا کر کے مدینے میں رہنے والے اور ہجرت کر کے آنے والے سب کو ایک دوسرے کا آپس میں دو بھائی بنا کر کے مقرر کر دیا. اب سب بھائی بن گئے، لیکن حضرت علی اکیلے بچ گئے. اب حضرت علی جب اکیلے بچے، حضرت علی کے آنکھوں میں آنسو آئے، حضرت علی اداس ہو گئے، چہرے کو نیچے کیا، آقا کی نظر پڑی. آقا نے پوچھا ہے علی کیا بات ہے، کیوں اداس ہو گئے، کیوں چہرہ اتر گیا؟ علی نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے سب کو کسی نہ کسی کا بھائی تو بنا دیا، میں اکیلا بچ گیا ہوں. آقا نے فرمایا علی پریشان نہ ہو، انت اخی، اے علی تمہیں بھائی ہے، تم پریشان مت ہو. سب کو میں نے مدینے میں رہنے والوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنایا ہے، اور علی تجھے دوسرے کا بھائی نہیں بنایا، تجھے میں نے خود اپنا بھائی بنایا ہے. آقا نے جسے اپنا بھائی بنا دیا، اور بھائی بھی تھے، چاچا زاد بھائی بھی تھے، اور خانہ کعبہ میں پیدا ہونے والے فاتح خیبر حیدر کرار شیر خدا جن کا لقب تھا، جن کے ذوالفقار کے بارے میں آقا نے فرمایا لا سیف الا ذوالفقار، کہ علی کے ذوالفقار کے طرح کوئی تلوار بھی نہیں ہے. ایسی شان حضرت علی کی. اور جب اس علی کو خام آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، حضرت علی نے عرض کیا اے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت نے بڑے بڑا پریشان کر رکھا ہے، آپ کی امت روزانہ ستاتی ہیں، آپ کے کلمہ پڑھنے والے روزانہ پریشان کر رہے ہیں، آپ کو ماننے والے بھی پریشان کر رہے ہیں، آپ کے دشمن بھی پریشان کر رہے ہیں. اور حضرت علی کے بارے میں آقا نے پہلے ہی فرما دیا تھا کہ اگر تمہیں مسلمانوں اور منافق میں فرق کرنا ہے، منافق اور مسلمان میں فرق کرنا ہے، تو یہ سمجھ جانا جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مسلمان ہے، اور جو علی سے نفرت کرتا ہے وہ منافق ہے. علی سے نفرت کرنے والے کو آقا نے ہماری علماء کی بات نہیں کر رہا ہوں، آقا نے خود فرمایا ہے کہ علی سے نفرت کرنے والا، علی کا بغض سینے میں رکھنے والا مسلمان نہیں ہے، وہ منافق ہے. ایسی شان علی کی. علی کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کی امت بڑا پریشان کرے، آپ کے دشمن بڑے پریشان کر رہے ہیں. آقا نے فرمایا علی پریشان مت ہونا، فکر مت کرنا. آقا دلاسا دے رہے ہیں اے علی پریشان مت ہونا، میرے بھائی پریشان مت ہونا، تمہارے جو بغض رکھنے والے تمہارے دشمن ہیں وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ برباد ہو جائیں گے. حضرت علی بیدار ہوئے. بیدار ہونے کے بعد صبح کا وقت ہوا، رمضان کا مہینہ ہے، صبح کا وقت ہوا، نماز کے لیے حضرت علی نکلے. کوفہ سے اذانیں آنے لگی، الصلاۃ 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 حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح الصلاۃ خیر من النوم. جب آوازیں آنے لگی حضرت علی نماز پڑھانے کے لیے نکل پڑے، امامت کے لیے نکلے. اور حضرت علی کی یہ عادت کریمہ تھی کہ جب بھی گھر سے نکلتے تھے تو جب تک مسجد نہیں پہنچ جاتے ہر دروازے پر دستک دے کر کے کہتے ہیں اے لوگوں حی علی الصلاۃ الصلاۃ خیر من النوم الصلاۃ خیر من النوم، اے لوگوں نماز کا وقت ہو چکا ہے، نیند سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز کی طرف، نیند سے بہتر نماز ہے، آؤ نماز کی طرف. ایسے ہی حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم بولتے جاتے، لوگوں کو نماز کی طرف دعوت دیتے جاتے. حضرت علی ایسے راستے کی طرف جا رہے تھے، اچانک عبد الرحمن ابن ملجم جو ہے حضرت علی کے سامنے آیا، اور آنے کے بعد حضرت علی کو سمجھنے کا موقع بھی نہ دیا، اور حضرت علی کے چہرے پر نیزے سے حملہ کر دیا. اب جیسے ہی حملہ کیا حضرت علی کے چہرے پر زخم آ گئے. حضرت فرمایا جاتا ہے کہ حضرت علی کا سر پھٹ کر کے وہ اس کے نیزہ جو ہے حضرت علی کا جو دماغ تھا اس دماغ پر جا کر کے لگ گیا. حضرت علی کے سر سے خون بہ نکلا،
اور اتنا خون نکلا کہ چہرے پر پیر پر جو داڑھی ہے پوری داڑھی خون سے پوری رنگ چکی تھی، خون سے گیلی ہو چکی تھی۔ حضرت علی نے سب سے پہلے چہرے کی طرف دیکھا اور دیکھا کہ میری پوری داڑھی جو ہے یہ خون سے بھر چکی ہے، تو حضرت علی نے فرمایا علی کامیاب ہو گیا، علی کامیاب ہو گیا۔ امام حسن نے فوراً جب دیکھا کہ حضرت علی زخمی ہو کر کے گر پڑے تو تمام صحابہ جو تھے سب لوگ جمع ہوئے، حضرت علی کو سنبھالا۔ حضرت علی نے کہا کہ میں کامیاب ہو گیا۔ اب سنیے حضرت علی نے ایسا کیوں کہا کہ علی کامیاب ہو گیا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت علی تقریباً بیمار ہوئے اور اتنا شدید بیمار ہوئے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب عیادت کو آئے، علی نے عرض کیا یا رسول اللہ لگتا ہے اب آپ کا علی دنیا چھوڑ کر کے جانے والا ہے، آپ کے علی اس بیماری سے انتقال کر جائے گا۔ آقا نے فرمایا اے علی تم اس وقت نہیں انتقال کرنے والے، تمہارا انتقال اس وقت نہیں ہے، تمہاری موت اس وقت نہیں ہے، تمہاری موت اس وقت ہوگی جب تمہاری داڑھی خون سے بھیگی ہوئی ہوگی۔ علم غیب دیکھیں، نبی کا علم دیکھیں، علی نبی کے پردہ فرمانے کے بعد کئی سال کے بعد شہید ہونے والے ہیں۔ اس حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت کی باتیں بتا رہے ہیں جب حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما جا چکے ہوں گے۔ فرمایا علی تم اس وقت تمہاری موت ہوگی جب تمہاری پوری داڑھی جب خون سے لاکھ ہو جائے گی، سمجھ جانا اللہ رب العزت تمہیں شہادت کی موت نصیب فرما دے گا۔ تو جیسے حضرت علی نے داڑھی کو دیکھا کہ خون سے بھری ہوئی داڑھی ہو چکی ہے، علی سمجھ گئے کہ آقا نے جس چیز کی بشارت دی تھی آج وہی وقت ہے، آج اللہ کے راہ میں قربان ہونے والا ہوں۔ اس لیے علی نے فرمایا علی کامیاب ہو گیا۔ ہماری جب موت آتی ہے ہم بھاگنے لگ جاتے ہیں، ہمارے جب کسی سے جھگڑا ہوتا ہے ہم ڈرنے لگ جاتے ہیں، ہماری جب کوئی چیز قربان کرنے کے اللہ کے راستے میں باری آتی ہے ہم سوچنے لگتے ہیں، ہمارے قدم لڑکھڑا جاتے ہیں، ہمارا دل گھبرا جاتا ہے، ہمارا دماغ کام کرنا بند ہو جاتا ہے، ہمارے عقل پر پردے پڑ جاتے ہیں، آنکھوں سے صحیح صاف نظر آنا بند ہو جاتا ہے۔ لیکن علی پر قربان جاؤ، علی کو پورا گارنٹی کے ساتھ پتا چل چکا ہے، حملہ ہو چکا ہے، داڑھی خون سے لال ہو چکی ہے، تب بھی علی کہہ رہے ہیں کہ علی کامیاب ہو چکا ہے۔ یہ علی ہیں، یہ عقیدہ، یہ ایمان ہے، یہ محبت ہے، یہ محبت ہے اللہ کے راہ میں شہید ہونے کا، یہ جذبہ ہے، اسے کہتے ہیں ایمان، اسے کہتے ہیں سچے مسلمان۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اندر کیا یہ ہمت ہے، یہ ہمت چھوڑ دیجئے۔ اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ کے اندر اتنی ہمت ہے کہ آپ سے میں یہ کہوں کہ آپ جو ہے صبح تہجد کے وقت اٹھ کر کے نماز کو مسجد میں آ سکتے ہیں؟ نماز وقت تھوڑی سی نیند قربان کر کے ہم مسجد میں آنے کو تیار نہیں ہے، یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور علی نماز کو جاتے وقت بھی اللہ کے راہ میں شہید ہونے کو تیار ہو جائے، یہ علی کا ایمان ہے۔ تو میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت علی زخمی ہوئے، اتنے تیز وار ہوا کہ سر پھٹ گیا، سر کی ہڈی جو ہے ٹوٹ گئی، پھر تلوار اور نیزہ جو ہے وہ بھیجے میں گھس گیا، اور گھسنے کے بعد خون سے جب تر ہو گئے، حضرت امام حسن سامنے آئے، اٹھایا سر کو، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت امام حسن سے کہا، بڑے صاحبزادے تھے، امام حسین کے بڑے بھائی تھے، کہا اے حسن 4 باتیں یاد رکھنا، تمہیں آخری وصیت کر کے جا رہا ہوں، یہ آپ لوگوں کو بھی میں وصیت کر رہا ہوں حضرت علی کی طرف سے۔ حضرت علی نے امام حسین کو جو وصیت کی تھی، وہ وصیت میں آج آخری جو حضرت علی کی وصیت تھی وہ میں آپ کے سامنے بتاؤں گا۔ حضرت علی نے کہا اے امام حسن 4 باتوں کا خیال رکھنا۔ عرض کیا ہے میرے بابا بتائیں صحیح کون سی بات ہے، کون سی نصیحت فرمائیں؟ علی نے فرمایا کبھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا، کبھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا، کیونکہ وہ تیرے اور تیرے بھائی کے درمیان ایسی چیزیں پیدا کر دے گا جھوٹ بول کر کے کہ تو اپنے بھائی کا دشمن ہو جائے گا، کبھی جھوٹے سے دوستی مت کرنا۔ علی نے فرمایا اے حسن
मेरी दूसरी वसीयत ये है कि कभी बखील से दोस्ती मत करना, ये कंजूस होता है, कंजूस से दोस्ती मत करना। क्यों? इसलिए कि जब ये तेरे से दोस्ती करेगा तो तेरी जरूरत की चीजों से भी तुझे दूर कर देगा। जाहिर सी बात है, जो कंजूस होता है उसे अगर भूख लगी वो एक प्लेट खाने की, वो ये सोचेगा कि अगर मैं एक प्लेट खाऊंगा मेरा इतना पैसा जाएगा, मैं हाफ प्लेट खा लेता हूं। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितनी तुम्हारी जरूरत है उतना तुम्हें खर्च करने का हुक्म भी दिया है, लेकिन बखील से जब दोस्ती करोगे तो अल्लाह के इस फरमान से भी पीछे हट जाओगे। तो हमेशा ख्याल रखना कि तुम जिससे दोस्ती कर रहे हो, जिसके साथ तुम अपना ताल्लुक को बना रहे हो, जिसके साथ तुम अपने शब रोज गुजारने का इरादा कर रहे हो, वो इंसान कैसा है? वो इंसान झूठा तो नहीं है, वो इंसान बखील तो नहीं है, वो इंसान ईमान वाला तो है ना, वो इंसान नमाजी तो है या नहीं है? क्योंकि अगर बेनमाजी से रिश्ता बनाओगे तो बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि सोबते सालेरा साले कुनन, सोबते सालेरा साले कुनन, अगर तुम अच्छे से दोस्ती करोगे वो तुम्हें अच्छा बनाएंगे और बुरों से दोस्ती करोगे तो वो तुम्हें बुरा बना करके रहोगे। और याद रखना, नेकी का असर बाद में होता है, नेकों की संगत का असर बाद में होता है, सबसे पहले बुरों की संगत का असर होता है। तो इस बात का ख्याल रखना, जिसके साथ तुम्हारे शब रोज गुजर रहे हैं वो इंसान कैसा है, जिसके साथ तुम्हारे बच्चों के शब रोज गुजर रहे हैं वो इंसान कैसा है। क्योंकि तुम्हारा दोस्त तुम्हें जन्नत में जाने का सबब भी बनता है तो तुम्हारे जहन्नम में जाने का सबब भी बनता है। ये नसीहतें थी हजरत अली की, आखिरी वक्त में हजरत अली नसीहत फरमा रहे हैं, तो अंदाजा लगा लो इस चीज की कितनी ज्यादा अहमियत होगी। अब हजरत अली को घर में लाया गया, लाने के बाद उलमाए कराम फरमाते हैं कि तकरीबन 2 दिन या 3 दिन हजरत अली हयात रहे। फिर 19 रमजान को जो है हजरत अली जो है इस दुनिया से पर्दा फरमा गए और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु उस वक्त शहीद हो गए। तो ये हजरत अली की शहादत का वाकया है। अब जरा मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हजरत अली के बारे में, उस्मान के बारे में भी आपने सुना और हजरत उमर के बारे में भी आप जानते हैं कि उमर को भी जो है उमर को भी शहीद किया गया। उस्मान के बारे में भी जानते हैं कि हजरत उस्मान को भी शहीद किया गया। हजरत अली के बारे में भी आपने सुना कि हजरत अली को भी शहीद किया गया। और इसके अलावा आप जानते हैं कि जब इस्लाम की इब्तिदाई दौर थी, कुछ लोगों को घोड़े से बांध करके मक्का की गलियों से घसीटा जाता, तो कुछ लोगों को गर्म लेप पर लेटा करके उनके सीने पर पत्थर रखे जाते, तो कुछ लोगों को जो है तेजों से मार करके जख्मी कर दिया जाता, तो कुछ लोगों पर पत्थरों की बारिश की जाती। मैं आपको कहूँ कि बात यहीं पर खत्म नहीं होती। अम्मार जिनका नाम है सहाबे हैं, कुछ सहाबे ऐसे थे कि जिनको मारा गया तो गया, उनके वालिदैन के साथ कितना बुरा सलूक किया गया। मर्द तो मर्द थे, औरतें जानते हैं अब औरतों की कितनी बड़ी कुर्बानियां है इस्लाम में। औरतों को कितना दर्दनाक आसान सजाएं दी गई सिर्फ कलमा पढ़ने की वजह से। जानते हैं आप, खातून इस्लाम थी, उन्हें घोड़ों से बांधा गया, एक हाथ एक घोड़े से बांधा गया, एक हाथ दूसरे घोड़े से बांधा गया, एक पैर दूसरे घोड़े से बांधा गया, एक तीसरा पैर दूसरे घोड़े से बांधा गया। 4 घोड़ों से बांध करके चारों घोड़ों को भगाया गया। हड्डियां फरमाया जाता है, साहबा फरमाते हैं कि उस खातून की हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी, हड्डियां टूटने की आवाजें आने लगी। यहीं पर काफिर और नहीं रुके, आखिर में उनकी शर्मगाह पर तलवार से हमला किया, उस खातून के 2 टुकड़े होकर के रह गए। इतने दर्दनाक सजाएं दी गई हैं, इतना दर्दनाक तलवाया गया है। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो नबी का कलमा पढ़ते थे। क्यों? सिर्फ इस वजह से कि वो एक खुदा की गवाही देते थे। ये जज्बा कहाँ है हम लोगों के अंदर? और उन्हें ये भी ऑफर दिया गया था कि अगर वो इस्लाम को छोड़ते, अगर वो ईमान को छोड़ते, मोहम्मद अरबी को छोड़ते तो उन्हें बख्श दिया जाता। ये ऑफर भी उन्हें दिया जाता, ये ऑफर भी उन्हें था, ये ऑप्शन भी उनके पास था।
क्या वो अगर नबी का कलमा छोड़ देते, नबी का रास्ता छोड़ देते, तो उन्हें जिंदगी भीख में देने का ऑप्शन भी नहीं दिया गया था। लेकिन उनका ये ईमान था, उनका ये जज्बा था, उनकी मोहब्बत, उनके आका से इश्क था, जो उन्हें जान से मारने की धमकी देने के साथ साथ इतना बुरा सलूक, इतना जुल्म ज़्यादती जब की गई, इसके बावजूद भी मर्द तो मर्द गए, इस्लाम की किसी खातून ने अपने इस्लाम को छुड़ाना गवारा नहीं किया। तो ये सहाबा की कुर्बानी है, ये खुलफाए राशिदीन की कुर्बानी है। कितनी कुर्बानी दे भी माल की कुर्बानी की बारी आती, माल भी कुर्बान, जान की कुर्बानी आती, जान भी कुर्बान, कभी अपने कदम को पीछे नहीं हटाया। कहाँ हमें कुर्बानी का हमने अदा किया, ऐसा साइन कुर्बानियों का हमें कैसा ईमान है, कुछ भी हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता। हम रोजाना सुनते नहीं किसी न किसी के साथ, हम सुनते हैं साहबा की कुर्बानी, हम सुनते हैं कबीर की कुर्बानी, हम सुनते हैं अल्लाह की कुर्बानी, हम सुनते हैं अल्लाह का आसाब, हम सुनते हैं रसूलुल्लाह की कुर्बानी। रसूलुल्लाह ने किस कदर तकलीफ बर्दाश्त की, वो तकलीफ भी हम सुनते हैं। हमारा ईमान जोश नहीं मारता, हमारा ईमान नहीं चलता, हमारा ईमान हमें लेकर के सुबह मस्जिद में नहीं पहुंचाता। हमारा ईमान, हमारा इश्क रसूल, हमारा क़ौमे खुदा हमें सुबह बिस्तर से उठा करके मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता। हमारा ईमान, हमारा क़ौमे खुदा, हमारा इश्क रसूल हमें काम छुड़ा करके मस्जिद नहीं पहुंचा सकता। ए नौजवानों बताओ, क्या हमारा ईमान इतना कमजोर है कि हमारा ईमान हमें मस्जिद तक नहीं पहुंचा सकता? तलवारों के साए में भी हमारा काबिल ने नमाज अदा की है, और हम पंखों के एसी के साए में नमाज पढ़ने को तैयार नहीं है। क्या जवाब दोगे मलिक अल्लाह को? ये अली की कुर्बानी जाया मत होने देना, ये सहाबा की कुर्बानी जाया मत होने देना, ये उस्मान की शहादत जाया मत होने देना, करबला में बच्चे बच्चे की कुर्बानी जाया मत होने देना। तुम्हारा नमाज छोड़ना, तुम्हारा अल्लाह के रास्ते से भटक जाना, अज़ान को इग्नोर करना, नमाज को इग्नोर करना, कुरान से दूर होना, दीन से दूर होना, दीन के रास्ते से दूर होना, इसके साथ साथ ये चीजें तुम्हारे कुर्बान अल्लाह के रसूल के सहाबा की कुर्बानियों को जाया करना। करबला में आने वाले बच्चे बच्चे की शहादत को हमने जाया कर दिया है। उन्होंने कुर्बानी दी, ये सोच करके हम कुर्बानी देंगे तो हमारी कुर्बानी देख करके इन मुसलमानों के अंदर जज्बा पैदा होगा, इनका ईमान ज्यादा मजबूत होगा। हम रात में यहाँ कुर्बानी सुन करके जाए, हम रात में यहाँ शहादत सुन करके जाए, हम रात में यहाँ पर सहाबा की कुर्बानी सुन करके जाए, और सुबह हमारा ईमान और हमारा सुन्ना में नमाज मस्जिद तक ना पहुंचाए। कैसे, किस काम का हमारा सुनना, किस काम कर रहा हमारा ईमान, किस काम कर रहा हमारा क़ुर्बे खुदा, किस काम कर रहा हमारे इसके रसूल? और मैं तुम्हें नमाज की तरफ बुलाता हूँ, हाँ मैं तुम्हें अल्लाह के रास्ते की तरफ बुलाता हूँ, हाँ मैं तुम्हें क़ौमे खुदा की तरफ बुलाता हूँ, हाँ मैं तुम्हें इसके रसूल की तरफ बुलाता हूँ। एक नौजवान जब एक लड़की की मोहब्बत में फिदा होता है, रात भर भर जाकर के अगर बातें करने का मौका मिला, रात भर नींद कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ये हमारे नौजवानों की आदत है, बुरा लगे कोई बात नहीं, कैसी बात कर रहे हो, सोच रहे हो तो कोई बात नहीं, ये हमारे मुआशरे के मुसलमान नौजवानों की हकीकत है, मैं आपके सामने पेश करना। रात भर चाल चाल करके अगर लड़की के औरत में रात भर जागना पड़े, हमारा नौजवान तैयार है, रात भर चाल चाल करके बातें करेंगे। अगर मुलाकात करने का मौका रात के 3 बजे भी मैसर आए, हमारे नौजवानों की यह आदत है, यह हालत हो चुकी है कि वो रात में अगर 3 बजे भी मुलाकात का मौका आए तो बिस्तर छोड़ करके जाकर के मुलाकात करेंगे। दीन की राह में 10 रुपए खर्च करने के तैयार नहीं, और मौका मिले 100 रुपए 500 रुपए का पेट्रोल खर्च कर करके गाड़ी रातों रात चला करके जा करके मुलाकात करना पड़े, क्या करेंगे?
इतनी बुरी हालत हम मुसलमान नौजवानों की हो चुके हैं। किस रास्ते पर हम हैं? किसने सिखाया ये सारी चीजें हमें? करबला वालों ने ये पैगाम दिया था, अली की शहादत ने ये रास्ता हमें बताया था, उस्मान की शहादत ने ये तरीका हमें सिखाया था। गौसे आजम की जिंदगी से क्या तुमने ये सबक सीखा है? किसी साहब, किसी वली, किसी नबी की आड़ से ये सबक नहीं मिलता। ये तुम्हें दुनिया के बादल चले बुनने इस गंदे रास्ते पर डाल करके रखा है। ये यहूद मुशरिकीन की चाल है जिन्होंने तुम्हें अल्लाह के रास्ते से भटका दिया है। यहूदियों की ये फितना है जिन्होंने व्हाट्सएप बना करके, जिन्होंने इंस्टाग्राम बना करके, जिन्होंने फेसबुक बना करके, जिन्होंने स्नैपचैट बना करके, जिन्होंने सोशल मीडिया बना करके तुम्हें इस गंदे रास्ते पर डाल दिया है कि तुम इनमें लग करके कुरान से दूर हो चुके। तुमने अपने हाथ में मोबाइल इस तरीके से थाम लिया कि तुम्हारे अंदर कुरान थामने वाला ईमान नहीं रहा। तुमने अपने आंखों से ऐसे पिक्चरें, ऐसी मूवीज देखने की आदत डाल ली कि तुम इन आंखों से कुरान की आयत नहीं देख पा रहे हैं। तुमने अपने दिमाग में ऐसे फिल्म स्टार के रास्ते को चलने को इख्तियार कर लिया, अपना एहसास जाति बना लिया, अपने सहन में ऐसे इंसान को बसा लिया है कि जो तुम्हें इस गुनाह के रास्ते पर डाल रहा है कि जिसके बाद तुम्हें कोई अली का रास्ता नजर नहीं आता, कोई उस्मान का रास्ता नजर नहीं आता, कोई साहबा का रास्ता नजर नहीं आता, कोई कुरान का रास्ता नजर नहीं आता। अल्लाह का वास्ता देता हूँ, कुरान का वास्ता देता हूँ, सहाबा का वास्ता देता हूँ, ये गंदे रास्ते पर तुम्हें इन शैतान और मुशरिकीन ने डाल रखा है, इन यहूदियों की चालों ने तुम्हें इन गंदे रास्ते पर डाल रखा है। तुम्हें वास्ता देता हूँ, आओ छोड़ दो वो रास्ता। तुम्हें गुनाह की तरफ हजार लोग बुलाएंगे, नेकी के रास्ते पर अगर एक भी इंसान बुलाए तो मैं तुम्हें वास्ता देता हूँ, हजार लोगों को जूतों के नोक पर रख देना, एक नेकी के रास्ते पर बुलाने वाले के रास्ते पर चल पड़ो। तुम्हें अल्लाह दुनिया में भी कामयाबी अता फरमाएगा, आखिरत में भी कामयाबी अता फरमाएगा। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं बता रहा था ये अली की कुर्बानी है, जाया मत होने देना। आज के इस प्रोग्राम से यही तुम्हें पैगाम देता हूं कि अली की कुर्बानी जाया मत होने देना। अली जानते थे कि मुझे यहां शहीद किया जाएगा, अली जानते थे ऐसी हालत में मुझे शहीद किया जाएगा, लेकिन अली उस रास्ते को छोड़ करके, उस जगह को छोड़ करके कभी वहां से नहीं बैठे, शहादत को खुशी खुशी गले लगा लिया, ये सोच करके आज मैं शहादत को गले लगा लूंगा, कल आने वाली नबी की उम्मत मेरे रास्ते पर चल करके अपने ईमान को मजबूत करेगी। तो खुदा अपने ईमान को कमजोर मत होने देना, अली की कुर्बानी को जाया मत होने देना, अली की शहादत को जाया मत होने देना। खुदारा इस हक को याद रखना, अली के रास्ते, अली की शहादत को याद रख करके अपने आप को भी जिनके रास्ते पर लाने की कोशिश करो और अपने बच्चों को भी इस रास्ते में लाने की कोशिश करो। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अब आइए शान अहले बैत भी हम लोगों को समाप्त करनी है, अहले बैत अतहार की अजमत भी हम लोगों को समाप्त करनी है। तो मैं आपको बताऊं, अहले बैत अतहार की अजमत में एक वाक्य जो मैंने पढ़ा है, वो वाक्य अगर आपको बता दूं, वो अकेला वाक्य इस बात की गवाह हो जाएगा कि अहले बैत अतहार की शान का आलम क्या है। अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्नमा युरीदुल्लाह लियुज़हिबा अन्कुम रिजअल बैत व युतहिरुकुम तत्हीरा, कि अल्लाह तो यही चाहता है कि ए अहले बैत, अल्लाह तुमसे बुराई को दूर कर दे और तुम्हें पाक फरमा दे। अल्लाह कह रहा है कि कोई बुराई अहले बैत अतहार से नहीं लगेगी, अल्लाह चाहता है कि बुराई दूर हो। तो अंदाजा लगा लें उस अहले बैत अतहार की पाकी का आलम क्या होगा, उनकी सुतराई का आलम क्या होगा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान मजीद में दूसरी जगह इरशाद फरमाया, फमन हज इलल बैत,
इस आयत को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुकम्मल इला आखिर तक बयान फरमाया। इसकी शान नुज़ूल में बयान फरमाते हैं कि एक मरतबा रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ईसाई के कुछ पादरी लोग आए, आकर के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जो है अर्ज करने लगे कि ए मोहम्मद अरबी, क्या तुम ये अकीदा रखते हो कि ईसा अल्लाह के बंदे हैं? ईसा अल्लाह के बंदे हैं, जो कि ईसा के जो मानने वाले ईसाई हैं उनका ये अकीदा है कि वो लोग जो है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को है अल्लाह का बेटा मानते हैं। माज़अल्लाह। ये चीज भी याद रखें, ये अकीदा रखना जरूरी है कि अल्लाह की कोई औलाद नहीं है कोई औलाद? कोई अल्लाह की औलाद नहीं है। अल्लाह बीवी बच्चों से पाक है, अल्लाह औलाद से पाक है, अल्लाह के कोई बच्चे नहीं है, अल्लाह जिस्म से पाक है। ये अकीदा रखना जरूरी है। अल्लाह जिस्म से पाक है, अल्लाह अकाइद से पाक है, अल्लाह जो है औलाद से पाक है, बीवी बच्चों से पाक है। तो उन लोगों का ये गंदा अकीदा था कि अल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा माना करते थे। माज़अल्लाह। अब अल्लाह के रसूल के सामने आए, कहा कि क्या तुम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हो? हज़रत हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, हम ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बंदा मानते हैं। ईसाइयों ने कहा कि कैसे? ए मोहम्मद, तुम बताओ, जरा ये तो बताओ कि क्या बगैर बाप के कोई बेटा होता है? उनका मतलब ये था कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के कोई बाप नहीं है, कोई वालिद नहीं है, तो गोया कि उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज्जत को माज़अल्लाह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का बाप मान लिया था। ये उनका गंदा अकीदा था। ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा मानते थे। क्यों? इस वजह से कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम बगैर बाप के अल्लाह ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया था। उन्होंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका जवाब दिया, फरमाया तुम हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की बात करते हो, तुम्हारा ख्याल हजरत आदम और हजरत हव्वा के बारे में क्या है? क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हव्वा और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जो है ना बगैर बाप के भी पैदा किया और बगैर माँ के भी पैदा किया है। यहाँ तो सिर्फ बगैर बाप के पैदा किया है। माँ तो मौजूद है हजरत मरियम, लेकिन यहाँ पर ना माँ है ना बाप है। तो बगैर माँ बाप के आदम और हव्वा को अल्लाह ने पैदा फरमा दिया, उनको तुम अल्लाह की औलाद नहीं मानते, तो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा क्यों मानते हो? अब वो लोग गुस्से में आ गए, क्योंकि जाहिर सी बात है उनके अकीदे के खिलाफ होगा, तो वो लोग और ज्यादा बहस करने लगे। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में फरमा दिया, ए हबीब, तुम उनसे मुबाहिले के बारे में कहो। मुबाहिला कहते हैं कि दोनों लोग आमने सामने हो और बैठे, उनके तमाम लोग आए, हमारे तमाम लोग आए, और दोनों बैठ करके एक दूसरे के बारे में दुआ करें कि जो हक पर गए अल्लाह उसे सलामत रखे, और जो बुराई पर गए अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे जो है निस्तो नाबूद कर दे, निस्तो नाबूद कर दे। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, कल तुम आ जाना और मुबाहिला करना। तो मोबाइल लेके तैयार हो जाओ। लेकिन उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन हम पहले जा करके हमारे जो ईसाई पादरी होते, जो ईसाइयों में जो सबसे बड़ा माना जाता था, जिसका नाम आकिब था, हम उससे जा करके मशवरा करके आएंगे। तो ये लोग गए, मशवरा किया और पूछा कि हाँ, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है हमसे मोबाइले के दरखास्त कर रहे हैं, हुक्म दे रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं, हम लोग क्या करें? तो उनका जो सरदार था उस वक्त, जो बड़ा पादरी था, उनसे कहा कि तुम जानते हो कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं, उनसे अगर तुम मुबाहिला करोगे तो याद रखना कयामत तक तुम्हारी कोई नस्ल, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहेगा। रसूल पाक से अगर दुआ में बहस करोगे तो तुम्हारा नाम और निशान खत्म हो जाएगा, तुम्हारा कोई नाम लेने वाला मौजूद नहीं होगा। तो ऐसी तरीके से बहस हुई। उनके ईसाई ने, पादरी ने कहा कि जो है अब ये लोग मान गए कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बहस नहीं करनी है। तो ये लोग आए, दोबारा आने के बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा कि हजरत रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत इमाम हुसैन को गोद में बताया और इमाम हसन का हाथ अपने हाथ में लिया, और पीछे जो है हजरत फातिमा ज़हरा और हजरत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो है खड़ी हैं। जब ये आलम देखा
تو پادری نے کہا کہ اے لوگوں، میں ایسے لوگوں کو دیکھ رہا ہوں، ایسی جماعت کو دیکھ رہا ہوں کہ یہ لوگ اگر نبی اور پنجتنی پاک کے بارے میں عیسائی پادری کہہ رہا تھا کہ ان لوگوں کو میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ اگر اس وقت دعا کر دے کہ پہاڑ کو اللہ ہٹا دے تو اللہ رب العزت ان کی دعا سے پہاڑ کو ہٹا دے گا.